Hello friends, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का कोर्स स्टार्ट करा रही हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री कराऊँगी टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज। आज मैं आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ और मैं आपको बता दूँ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को, जो फ्रेंड्स 9th 10th 11th 12th या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे केमिस्ट्री आती है, मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें कराऊँगी। अभी मैं फर्स्ट 9th का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, साथ में 10th 11th और 12th का भी कोर्स स्टार्ट करूँगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके फ्रेंड्स के लिए बेनिफिशियल है, देन सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर किसी का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। सो टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 9 syllabus. First chapter is matter in our surroundings, which is chapter number 1, and in this chapter we will discuss about states of matters, in which we will discuss different states of matter, that is solid, liquid and gases. Except that we will discuss another things also, which process is used to convert different forms of solid to liquid, liquid to gases, like evaporation, which factors affect evaporation, cooling due to evaporation, all these things with example, physical nature of matter, characteristics of particle in matter, how can we convert any state of matter one form to another form, and which factors are responsible and which terms are used there, we can study in this chapter. So here is much more for you. Not only this, some topics are deleted from this chapter because COVID-19. I will discuss that topics in our next video. So today we will discuss about matter. What is matter? First of all, what is matter? Matter is not seeing here because definition of matter I have already discussed in my previous videos. One video I have prepared on solid state, which is related to 12th class 12th chapter. You can see from there what is solid and solid general characteristics of solid. Here I am explain according according 9th class syllabus. So फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मैटर। यहाँ मैं आपको मैटर के बारे में हल्का सा बता देती हूँ। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है वैसे आप लोग जानते होंगे। मैटर विच इज़ इन द यूनिवर्स विच हैज़ वॉल्यूम एंड मास। पूरे यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ें मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, मीन्स स्पेस ऑक्यूपाई करती है या वॉल्यूम रखती है या मास रखती हैं, दैट आर कॉल्ड मैटर्स। Everything, each and everything which have mass and occupy space is called matter. There are three states of matter. The basic state of matter are three, that is solid, liquid and gases. So, and these three states are interconvertible to each other by increasing or decreasing pressure and temperature. There are mainly two factors which are responsible for conversion of these states of matter into another state. Like we can convert solid into liquid, liquid into gas, or gas into liquid, or liquid into gas. Means we can convert one state of matter to another state, and that the factors which can use for these conversions are temperature and pressure. Basically temperature और pressure होते हैं when we increase temperature of any substances, that converts, if that is solid it converts into liquid, and liquid when we boil liquid it converts into gaseous state. So temperature को increase करने से कोई भी जो स्टेट होती है, जो कॉम्पैक्ट वाली स्टेट होती है, लाइक सॉलिड, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू
ऐसी स्टेट जिसमें कि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, बिकॉज बॉइलिंग, जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिससे उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। तो जो दो बेसिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो होते हैं वो प्रेशर और टेम्परेचर होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम किसी का प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, मान लीजिए हमने किसी लिक्विड का प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज प्रेशर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो उसके पास स्पेस कम होगा और उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास होंगे। तो मॉलिक्यूल पास होने का मतलब है कि वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं जो इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट फैक्टर्स ये वर्क करते हैं। सो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन द फॉर्म ऑफ देयर डिफरेंसेस। यहाँ पे आपको डिफरेंस की फॉर्म में मैं डिस्कस करूँगी कि क्या होते हैं ये फैक्टर्स। सबसे पहले मैं बात करूँ सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड्स में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स के का जो शेप और वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स और आयंस होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, सो दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। while in case of liquid there is no fixed shape but they have fixed volume, because अगर हम शेप की बात करें तो लिक्विड्स जिस कंटेनर में आप पोर कर दोगे लिक्विड को वो उसी की शेप ले लेते हैं, जबकि इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। सपोज़ करिए हमने आपको 1 लीटर ऑफ वाटर दिया या 1 लीटर ऑफ मिल्क दिया, कोई भी लिक्विड दिया, उसको हमने कहा भाई ये इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर ही है, हमने कहा है इसको एक बकेट में करिए तो वो बकेट की शेप ले लेगा। अगर हमने कहा एक बाउल में कर दीजिए तो वो बाउल की शेप ले लेगा। अगर हमने कहा एक बोतल में करना है तो वो एक बोतल की शेप ले लेगा। मीन्स इट हैज़ नॉट अ फिक्स्ड शेप बट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। लीटर तो उतना ही रहेगा ना, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, 1 लीटर ही। सो लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। मीन्स इनका वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड होता है बट इनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है। बट इनके इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस की ना तो कोई शेप होती है डेफिनेट, ना ही वॉल्यूम होता है। अगर आपने एक सिलेंडर में भरा तो वो सारे सिलेंडर में फैल जाती हैं। अगर आपने एक किसी छोटी बोतल के अंदर फिल कर दी तो वो उसी में फैल जाती है। तो गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो पहला डिफरेंस क्या होता है, सॉलिड्स का जो शेप होती है वो फिक्स होती है, लिक्विड की शेप, सॉलिड्स की वॉल्यूम और शेप फिक्स होती है, लिक्विड्स की सिर्फ वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप नहीं होती फिक्स्ड, जबकि गैसेस में दोनों चीज़ें फिक्स्ड नहीं होती हैं। नेक्स्ट, एनर्जी। अगर हम बात करें सॉलिड्स की एनर्जी लोएस्ट होती है बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, दे हैव नो स्पेस टू मूव हियर एंड देयर, सो दे हैव लीस्ट एनर्जी। लिक्विड्स में मीडियम एनर्जी होती है एंड गैसेस में हाईएस्ट एनर्जी होती है। नाउ कंप्रेसिबिलिटी मीन्स होता है प्रेशराइज करना किसी चीज़ को। इफ़ वी आर प्रेशराइज ए ब्रिक, आप एक ईंट को दबाएंगे तो वो बहुत हल्के से दबेगी क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में होती है, जबकि आप अगर किसी बॉल को दबाते हो तो वो थोड़ी ईंट से ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी, बिकॉज या मैं कहूँ बॉल के अंदर तो फिर भी गैस फिल्ड है। अगर मैं प्योरली लिक्विड की बात करूं तो अगर आप किसी पॉलीथीन में या किसी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कंटेनर में वाटर फिल कर लेते हो तो दे कैन बी कंप्रेस। हमने कई बार देखा होगा, हम लोग देखते हैं एक बोतल आती है सिकाई करने वाली, जब कोई भी चोट लग जाती है कहीं पेन होता है तो वहाँ पे वो प्लास्टिक की एक बोतल आती है जिसमें पानी फिल कर लेते हैं, हॉट वाटर फिल कर लेते हैं, जिससे सिकाई करते हैं। दैट इज़ कंप्रेसिबल, आसानी से उसको कंप्रेस कर सकते हैं आप। तो जो लिक्विड्स होते हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी होती है, बट सॉलिड से
कम होती है, सॉलिड से ज़्यादा होती है बट गैसेस से कम होती है। जबकि गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, दे कैन कंप्रेस इजीली, जैसा कि मैंने अभी बॉल वाला एग्जांपल बताया था जिसमें गैस फिल्ड होती है, वो बॉल इजीली कंप्रेस हो जाती है। उसके अलावा आप बलून को देख लीजिए, आप बलून को भी कंप्रेस कर सकते हो। तो गैसेस क्यों होती है कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा गैसेस में? बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जितनी मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होगा उतनी ही कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो गैसेस में के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है तो वो कंप्रेस हो जाते हैं। लिक्विड के में कंपैरेटिवली कम होता है तो वो कंप्रेस होते हैं, और सॉलिड्स में वो सबसे कम होता है तो इसीलिए वो सबसे कम कंप्रेस होते हैं। तो इट इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करते हैं, देखो जैसा कि हम स्टार्टिंग से ही कहते आ रहे हैं, सॉलिड्स की जो शेप और साइज होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। शेप फिक्स होती है, दैट मीन्स देयर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं। दैट इज़ वाई दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इनकी शेप और वॉल्यूम इसीलिए फिक्स होती है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर और क्लोज्ड होता है, फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। इसीलिए ये कंप्रेसिबिलिटी भी कम होती है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस भी कम होता है क्योंकि ये एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये रैंडम एंड लिटिल स्पेयर्सली अरेंजमेंट होता है कंपैरेटिवली। जैसे थोड़ा रैंडम होता है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो सकता है, कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, हेयर एंड देयर मूवमेंट होता रहता है इनका। जबकि गैसेस में रैंडम एंड मोर स्पेर्सली अरेंजमेंट होता है। मीन्स गैसेस में कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है कहीं भी कोई मॉलिक्यूल, और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है तो इनका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है मॉलिक्यूल्स का। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ फ्लूडिटी। फ्लूडिटी कहते हैं फ्लो करना, किसी चीज़ का फ्लो करना फ्लूडिटी कहलाता है। तो सॉलिड्स कांट बी फ्लो। हम कभी भी हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे मैं ब्रिक का एग्जांपल बता रही थी कि ब्रिक आपने कभी फ्लो करते देखा है? आपके घर में बहुत सारे मेटेलिक कंटेनर्स होते हैं, वो जैसे होते हैं वहीं रखे रहते हैं। आपकी बुक्स हैं, पेन है, ये सारी सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, दे कांट फ्लो। ये कभी भी आपने इनको फ्लो करते नहीं देखा होगा। वाइल इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड कैन बी फ्लो, जो कि हमेशा जो फ्लो करते हैं वो हायर टू लोअर करते हैं। अगर आपके पास बोतल फिल्ड है, आप उसको थोड़ा सा बट उसका जो कैप है उसको थोड़ा लूज़ करके और उसको डाउन कर दीजिए तो क्या देखेंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा वाटर रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ को देखेंगे, आप एक फर्श पर फ्लोर पर थोड़ा सा लिक्विड गिरा दीजिए, वो लिक्विड सारे में मूव करता हुआ फ्लो करता हुआ एक स्पेस, बहुत सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो लिक्विड्स हैव फ्लूडिटी वाइल गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस को तो भाई आप फ्लो बहुत, या हम कहें फ्लो की वजह हम इसका अगर कहें तो कहेंगे डिफ्यूज़ हो जाती है, बहुत तेज़ी से हो जाती हैं। गैसेस में जो फ्लो होता है वो ऑल डायरेक्शन में होता है। जैसे आप लोग देखते भी हो, अगर आप देखेंगे कि आपके घर में अगर सिलेंडर लीक हो रहा है, आपने कहीं देखा सिलेंडर लीक हो रहा था, आप देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी स्मेल फील नहीं कर रहे हो, यू विल फील इन ऑल डायरेक्शन, चाहे कहीं भी बैठे हुए। क्लास में एक बच्चा आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के आता है, सारे स्टूडेंट कहते हैं हाँ ये तो परफ्यूम लगा के आया, तो वो ऑल डायरेक्शन में इक्वली फ्लो करता है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी फ्लूइडिटी बहुत फास्ट होती है एंड ऑल डायरेक्शंस में होती है। नेक्स्ट वन इज़ मूवमेंट। जैसा कि हम जानते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मूवमेंट। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं, फिक्स शेप होती है, फिक्स अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है, क्लोजली अरेंजमेंट होता है, क्लोजली अरेंजमेंट होने की वजह से क्या होता है, इनमें मूवमेंट नहीं हो पाता है। आपकी क्लास की कैपेसिटी कितनी है? 50 स्टूडेंट्स की। आपके पास 50 स्टूडेंट्स की बेंचेस हैं और आपको उसी बेंचेस में 50 स्टूडेंट्स की बेंचेस में आपको 70-80 स्टूडेंट बिठा दिए जाएं तो इतने आप कॉम्पैक्ट होके बैठेंगे, इतने पास पास बैठेंगे कि आप मूव नहीं कर पाएंगे।
तो ऐसी कंडीशन होती है सॉलिड्स की कि जब उसके मॉलिक्यूल्स इतने पास पास होते हैं, दे हैव नो स्पेस, नो स्पेस, हाउसफुल है मीन्स उसके पास कोई स्पेस नहीं है, जब स्पेस नहीं है तो वो मूव भी नहीं कर पाते। जबकि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपैरेटिवली हायर होता है, जिससे कि वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मूव कर सकते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट होता है, एंड दे आर कंबाइंड टुगेदर बाय इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स फ्री, कांस्टेंट एंड रैंडम होते हैं, दे कैन मूव हियर एंड देयर, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स हैव मच मोर स्पेस बिटवीन दैम। नेक्स्ट इज इंटरपार्टिकल स्पेस। अगेन दैट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू अबव प्रॉपर्टी। देखें कहीं ना कहीं तो सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से लिंक ही हैं। इंटरपार्टिकल स्पेस मीन्स द स्पेस बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड। अगर वो क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उनके बीच में जो स्पेस है इंटरपार्टिकल या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, ये बहुत ही कम होता है, लीस्ट होता है। लिक्विड्स में सॉलिड से मोर होता है एंड गैसेस में लार्ज होता है। मैं बार बार वही बोल रही हूँ, इस पॉइंट को मैं बार बार बोलती जा रही हूँ। तो अभी तक आपकी समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अगेन वही है कि जो चीज़ जितनी क्लोज होगी उसके बीच में उतना ही ज़्यादा इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो दे हैव मोर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाइल गैसेस के थोड़ा उनके बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, वाइल गैसेस से मोर होता है। और गैसेस में ये मिनिमम होता है, लीस्ट होता है, बिकॉज इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी वो उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी की बात करें तो हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं वो फिक्स्ड शेप और साइज़ होता है। अगर आप देखें कि एक आपने कंटेनर लिया, एक छोटा सा पीस ले लिया आपने ब्रिक का, तो उसमें वेट ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली आप इतना ही लिक्विड लोगे तो, और गैसेस लोगे तो हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है। और मास अपॉन वॉल्यूम अगर डेंसिटी होती है तो सॉलिड्स की जो वॉल्यूम होगा वो कम होता है, मास ज़्यादा हो जाएगा उतनी ही चीज़ का, तो वो मैक्सिमम होगी, जबकि लिक्विड्स में वो मीडियम होगी और गैसेस में मिनिमम होगी। तो आई होप कि ये प्रॉपर्टीज़ आपकी समझ में आ गई होंगी, डिफरेंसेस आपकी समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैंने फिगर में दिखाने की कोशिश की है। दिस इज़ सॉलिड, दिस इज़ लिक्विड एंड दिस इज़ गैस। यहाँ पे सारे जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है। यहाँ पे आप टू कलर्स देख रहे हैं, रेड एंड ब्लू। ये इसलिए सपोज करिए मैं बात कर रही हूँ NaCl, सॉलिड्स की बात कर रही हूँ। अगर NaCl तो हर एक सॉलिड्स की एक अपना पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, कंपोजिशन होती है, और उसमें जनरली एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो वही हमने दिखाने की कोशिश करी है कि जो ये कैटायन और एनायन, पॉजिटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज को हम बोलते हैं एनायन। तो मैंने वही दिखाने की कोशिश करी है, हमने यही दिखाने की कोशिश करी है इस फिगर में, यही दिखाने की कोशिश करी है कि जो कैटायन और एनायंस होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड एंड दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। That is why they have least space between them and have highest intermolecular force of attraction and least compressibility also. They have no tendency to flow. जो हमने सारी प्रॉपर्टी पीछे स्टडी करी हैं यहाँ हम इस स्ट्रक्चर से फाइंड आउट कर सकते हैं। That is the दिस इज़ लिक्विड। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है। स्पेस मीन्स क्या है,
दे हैव कंपैरेटिवली सॉलिड के कंपैरिजन में इनके मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा स्पेस है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आप क्लियरली सॉलिड से ज़्यादा होता है इनके बीच में, जिससे कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। उसी से इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, बट सेफ फिक्स नहीं होती है। आप अगर स्पेस है तो इसको जिस भी जैसा भी फिल करोगे उसी को में वो एडजस्ट हो जाएगा। दे कैन मूव इनका मोर मूवमेंट, दे हैव मोर मूवमेंट इन कंपैरेटिवली सॉलिड्स। तो सारी प्रॉपर्टीज इस फिगर से ही क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट वन इज दिस इज सॉलिड गैसेस। गैसेस में आप जैसा देख रहे हैं इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टी मैंने अभी पीछे डिस्कस करी है वो सारी इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, ये फ्लो करती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। इनकी डेंसिटी मिनिमम होती है क्योंकि ये ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो डिफरेंस था इस डायग्राम से अगर आपने समझ लिया होगा तो इन डायग्राम से एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो तो शायद कि ये डायग्राम ही आप आप इन सारे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ तक अभी मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसीलिए मैं यहीं इतना ही आज आपको बताऊंगी, छोटी छोटी वीडियोस में बताऊंगी, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके इस चीज़ का। कोविड का टाइम है, मैं रेगुलर पैटर्न पे कंप्लीट कोर्स कराऊंगी। अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मैं और बेटर तरीके से उसको करा पाऊंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक आपको इस चैप्टर का मिलने वाला है।